Mumbai, the beautiful city of dreams. यहाँ हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, बनना चाहता है और रहना चाहता है। मैं रोजपुरी एज ए ब्यूटी एक्सपर्ट एंड स्किन एक्सपर्ट इसी सुंदरता की चाह की खोज में एक शख्स से मिली, जो है डॉक्टर पराग तेलांग। वेलकम टू द शो, जिसका नाम है कॉस्मेटिक टेल्स विद मी रोजपुरी एंड डॉक्टर पराग तेलांग। तो सर, इस प्रोसीजर रूम में हम कौन कौन से प्रोसीजर्स करते हैं? यहाँ पे हम लोग जितने भी माइनर प्रोसीजर्स है, लाइक वी हैव ऑल द लेज़र इक्विपमेंट हियर, सो लेज़र पॉलिशिंग फॉर गिविंग अ ग्लो टू द स्किन, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ any surgical mark or accident marks, acne scars, all those procedures are done here. Then small procedures like doing a thread lift, or for doing fillers for lip enhancement, or for injecting any botox for wrinkles, all those small procedures I do this. All the minor procedure in your day-to-day life that requires you to here. We have three kind of laser machines. One is for hair removal, that is permanent hair removal. The other is tattoo removal. This is a tattoo removal machine. So when we do treatment for tattoo removal, this is how the tattoo will go. जब ये tattoo के ऊपर हम लोग ये लेज़र का मशीन का लाइट देंगे तो धीरे धीरे ये टैटू मिट जाता है। तो इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है, या कोई इससे हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। देखिए, और पेपर को कुछ नहीं हुआ है। अगर ये पेपर आप टर्न करके भी देखेंगे, पेपर इज इंटैक्ट। The third machine is fraction laser. मेरी स्किन में भी सब बहुत सारे पिंपल्स है, रफ है स्किन, बहुत सारे ब्लैक हेड्स भी है, खड्डे भी है। उन चीज़ों को कैसे मैं क्लीन करूँ? आपको एज ऐसे डेली बेसिस पे सनस्क्रीन लगाना चाहिए मॉर्निंग में, एंड यू शुड वॉश योर फेस फ्रिक्वेंटली विद अ फेस वॉश। अपनी जो स्किन होती है ना, दैट स्किन हैज़ 5-6 लेयर्स लाइक दिस, ओके। सो आई कैन सजेस्ट समथिंग कॉल्ड एज अ फ्रैक्शनल लेजर ट्रीटमेंट फॉर यू। फ्रैक्शनल लेजर इज अ मशीन विच गिव्स लाइट एनर्जी टू द स्किन। तो वो लेज़र का आप एक सिटिंग लेंगे तो द टॉप लेयर विल गेट पील्ड ऑफ। व्हेन यू टेक सेकंड लेज़र ट्रीटमेंट, सेकंड लेयर विल गेट पील्ड ऑफ। ऐसे स्किन को एकदम पॉलिश्ड लुक दे सकते हैं। जैसे जैसे लेयर्स धीरे धीरे निकलते वैसे जाएंगे आपको तो फिर फेस क्लीन दिखते जाएगा, और उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आएगा। इट्स अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट। जिस दिन आप लेज़र करोगे उसके दिन और नेक्स्ट 2-3 दिन आपको स्किन पे रेड स्पॉट्स दिखेंगे, तो आपको मैं जो सनस्क्रीन दूंगा वो आपको बराबर से लगाना होगा। 2-3 डेज बाद कोई आपको साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ फील नहीं। Apart from those lasers, these lasers are all are non-invasive and they help us to remove hair permanently, to remove tattoo permanently, and the other laser which is specially for scars like pits and all what we develop after acne. There are certain times we don't treat acne, so we'll end up in having scars and pits. So we do have technology now with which we can improve and reduce scars totally and permanently, and that also without surgery. So that is CO2 fractional laser. Apart from those lasers, we have skin whitening treatments. Like we have this machine which is skin polishing machine. It is better version of better than the microdermabrasion, the older machines which used to work in dermatological clinics, which releases free oxygen in skin and thereby reduces your pigmentation, tanning, and helps you in brightening your skin color.
Okay, so similarly we have non-surgical facial machines. This has 2-3 probes, which is like a beauty instrument, and rather than doing facial like through hands, we have certain machines like ultrasonic, we have high frequency, we have galvanic ionization machines, which will brighten skin as well as give you plump of facial, which you get in salons. We do here in a better way, which is like medical, we call as medical facial. And we also have peels. Okay, what is now a peel? It's again a non-surgical thing which is used for brightening and detanning skin. So there are different kind of peels. So what does actually peel do? It removes your dead cells by a very technical method, not like scrubbing the face, which we usually get in salons. So what you get is a flawless clean skin in just minutes. Like it's a lunch break, you have 10 minutes and you want to have a facial kind of glow in 10 minutes. It's possible through peels and like skin polishing machines. देखा है कि वो एक सेलिब्रिटी को भी वैसे ही डील करते हैं, एक कॉमनर को भी वैसे ही डील करते हैं, बिकॉज डॉक्टर के लिए ऐसा नहीं होता कि ये सेलिब्रिटी है तो मैं इसको ज़्यादा वो करूँगा और इसका ट्रीटमेंट अच्छे से करूँगा, बिकॉज आपको दोनों तरफ ही अच्छा ही देना है, बिकॉज वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। तो हमेशा से मैंने देखा है उनको कि सेलिब्रिटी के लिए भी वो वैसे ही रहते हैं और कॉमनर्स के लिए भी वैसे रहते हैं। वो हमेशा से बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं, कुछ भी उनसे सवाल पूछो तो बहुत लंबा जवाब देंगे और समझा कर जवाब देंगे। ये नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट में रख दिया कि भैया ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे ऐसा होगा। उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं या फिर आपको नेट पे दिखाते हैं या फिर उसकी जो पूरी हिस्ट्री रहती है, उसके इंडिकेशन क्या हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। वो इंजेक्शंस जब लगाते हैं तो बड़े अच्छी अच्छी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं वो। अच्छा तो तुम यहाँ गई थी तो क्या हुआ था, वैसा किया था तो क्या हुआ था, तो वो बड़ा अच्छा लगता है ना। आपको जो चीज़ की ज़रूरत है, आपको अपने लिप्स को अच्छा दिखाना है, अपनी नोज़ को अच्छा दिखाना है, या फिर अपने आईब्रोज़ को या चिक बोन्स को या फिर डबल चिन ख़त्म करना है, तो वो आप करो अपने हिसाब से। अपने आप को खूबसूरत दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया मैं ये कर लूँगी तो ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। ये थोड़ा सा बहुत पुरानी बातें हैं और कोई इस वक्त किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। हाँ, जब वो अच्छा दिखता है तो ज़रूर सोचते हैं। The moment I sat in front of him, हम आए थे किसी इंजेक्शन के बारे में बात करने के लिए, लेकिन मैं पलट के उस वक्त मैंने ये कहा कि यार ये डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करेगा। और मैंने ये क्यों कहा? जब आप एक डॉक्टर से मिलते हैं, उनका एक डॉक्टर होना और इनका एक अच्छा इंसान डॉक्टर होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, या किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी होता है। तो जब मैं उनसे मिली तो ही वॉज वेरी ह्यूमन। उन्होंने कोई भी डॉक्टरेट मेरे ऊपर नहीं छांटी। उन्होंने मुझे कुछ ये नहीं बोला कि ये टर्म्स कंडीशंस ऐसे होते हैं और मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद क्या होगा। ही वॉज वेरी मच विथ मी, विथ माई प्रॉब्लम्स एंड विथ माई थाट्स एट दैट टाइम। जो मेरे उस वक्त प्रॉब्लम्स इतने बड़े मुझे लग रहे थे, उसको उन्होंने बहुत ही ईजी तरीके से बड़ी कूलली समझाया। और कूलली समझाने के बाद उन्होंने मुझे हर एक बात का आश्वासन दिया, ज़बानी बात करते करते, जो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद ही आप एक डॉक्टर को हाँ कहते हैं। तो मैंने उनको हाँ अंदर अंदर एक फर्स्ट मीटिंग में कह दिया था, एंड आई रिपीटेड इट टू हिम लेटर ऑन
when things changed with me in my life after his operation and after हर एक डॉक्टर का अपना टच होता है और उस टच के बाद जो इंसान बदलता है और उसमें जो चीज़ आती है आप सामने देख सकते हैं। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ इस वक्त। डॉक्टर के रोल के हिसाब से डॉक्टर वॉज सो ईजी एंड सो कूल। आपके कटने का डर, आपको एक प्रोसीजर कराने का डर और लोगों का डर कि उनको पता चल जाएगा कि मैंने बॉडी कॉन्टोरिंग कराई है या मैंने अपनी ब्यूटिफिकेशन कराई है, विच इज़ नीडेड इफ़ यू आर एजड, इफ़ यू हैव गिवन बर्थ टू चिल्ड्रन। मेरी 18 साल की बेटी है, मुझे तो ज़रूरत है आफ्टर 40 चीज़ों को अपने लिए करने का, एंड आई डिसाइडेड टू डू दैट। फेयर इनफ, एंड आई एम फिट। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अगर आप सिर्फ इस हॉस्पिटल और डॉक्टर के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं कहूँगी घर जैसा है, पारिवारिक माहौल है, सब हंसते हैं यहाँ पे, सबके चेहरे पे आपको स्माइल मिलेगी यहाँ पे। दे ट्रीट यू विद गुडनेस, दे टेक यू एज दे आर। डॉक्टर जैसे हैं, जैसे इंसान हैं वैसे बात करते हैं। वो डॉक्टर बन के बात बहुत कम बार की है, तो मैंने 2-3 बार डॉक्टर को ये भी कहा कि मैंने डॉक्टर आपके अंदर डॉक्टर बहुत कम देखा है। वो डॉक्टर मेरे सामने कभी ज़्यादा इट ऑल डिपेंड्स। और डॉक्टर ऐसे नहीं होते तो मेरे पास बोलने के लिए इतनी सारी बातें ही नहीं होती, क्योंकि मैंने उनके साथ कितना कनेक्ट किया होगा कि मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ। आप ये समझिए, जब भी डॉक्टर से मिलते हैं तो ऐसा लगता है अरे वापस से वो खूबसूरत सा सुंदर सा चेहरा सामने आ गया और वापस से वो प्यारी सी स्माइल आ गई। ही ब्रिंग्स यू बैक टू हिम। जब भी आप एक बार मिल के जाते हैं आपको दोबारा डॉक्टर पराग तेलंग का चेहरा ज़रूर याद आता है मुस्कुराता हुआ, एंड ही पुल्स यू बैक। ही इज़ दैट अ गुड ह्यूमन बीइंग। Facial aesthetic. If I talk about face, face is the most important part of your body. और हम जब किसी से मिलने जाते हैं the first thing people look at your face. And I think that everyone wants to look beautiful and they should look beautiful because आज everything is available because of science and the research that has been done in the skin surgery. And I think the cosmetic surgery is a trust between you and your surgeon. If I talk about Dr. Parag Telang, he's an artist by nature. और मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट से बेहतर आपके फेस को कौन पेंट कर सकता है और कौन सुंदर बना सकता है।